Good morning, everyone. In the previous class, we had discussed conversion method, how we convert incomplete records into double entry system. And we had written a question. Now we will solve that one. Any doubt from the previous class topic? No, sir. Is this screen visible? Yes, sir. This is the question that you had written. ये क्वेश्चन लिख लिया था ना? Yes, sir. ओके फॉर्मेट्स बना लो, अगर नहीं बनाए हैं तो 3 फॉर्मेट्स बना लो, सॉरी 2, एक टोटल डेटर्स अकाउंट और एक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अराउंड 10 लाइन्स ईच. Sir, drawn. Okay. Now let's start attempting the question. पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिखा है? Jasprit store does not maintain proper books of accounts. Following information is available from its records. बिल्स रिसीवेबल, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है. बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है? Sir, debit side. डेबिट साइड. तो बिल्स रिसीवेबल में डेबिट साइड लिख लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, और बैलेंस कैरिड डाउन फिर क्रेडिट साइड पे लिखो सेकंड लास्ट लाइन में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 75,000. Sir, written. सिमिलरली डेटर्स का किस तरह का बैलेंस होता है? Debit balance. तो डेबिट साइड पे लिख लो फर्स्ट लाइन में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, और क्रेडिट साइड पर सेकंड लास्ट लाइन में लिख लो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 14,000. Sir, written. Okay. Now which is the first particular given? Bills dishonored. Amount 6,000. What is the entry for this? Bills dishonored. Acceptor debit to bills receivable account. ठीक है. एक्सेप्टर या डेटर्स डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. तो डेटर्स में किस साइड आएगी? Debit side. डेबिट साइड पे लिख लो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 6,000 in brackets bill dishonored, bills dishonored. Sir, do we need to write the words which are given in the brackets? Yes, yes. Okay, sir. Sir, written. And in bills receivable account, this will come on which side? Credit side. Yes. Credit side पर लिख लो by total debtors account within brackets bills dishonored 6,000. Sir, written. Second information given is Checks dishonored. Amount 12,000. checks dishonored. What is the entry for that? Sir, debtor account debit to bank account. Very good. So debtors account में
डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 12,000. चेक्स डिसऑनर्ड. ठीक है, लेजर में वैसे हर पोस्टिंग के साथ हमें नरेशन की जरूरत नहीं होती ब्रैकेट्स में. ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि क्लियरली पता चले कौन सी पोस्टिंग किस चीज की आई है. एंड एंट्री, अच्छा इसका बिल्स रिसीवेबल में तो आएगा नहीं कुछ, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस एंट्री. थर्ड इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स. व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस? बैंक अकाउंट डेबिट टू टोटल डेटर्स अकाउंट. तो टोटल डेटर्स अकाउंट में ये पोस्टिंग किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड पर. बाय बैंक अकाउंट 20,000 अमाउंट रिसीव्ड. Sir, written. Next one is Discount allowed. discount allowed. What should be the journal entry for discount allowed? Discount allowed account debit to debtor. Right. तो डेटर्स में इसकी पोस्टिंग कैसे आएगी? Sir, on credit side by discount allowed account. Very good. By discount allowed account 4,000. Sir, written. Next item given is Sales return. journal entry for sales return. Sales returns account debit to debtor. So posting in total debtors account. On credit side by sales returns account. Very good. लिख लो. By sales returns account 10,000. Sir, written. Next item is Bad debts. bad debts. Entry, journal entry for bad debts. Bad debts account debit to debtor. So posting in total debtors account. On credit side by bad debts account. Excellent. लिख लो. By bad debts account 2,000. Sir, written. Next item is Discounted bills dishonored. discounted bill dishonored. इसकी क्या एंट्री होती है जब discounted bill dishonor हो जाता है? Acceptor or debtor debit to bank account. Yes, debtor या acceptor debit to bank account. तो इसकी posting debtors में कैसे आएगी? On debit side to bank account within brackets discounted bill dishonored. Very good. 5,000. लिख लो. Sir, written. Then eighth particular is Endorsed bills dishonored. जो बिल हमने एंडोर्स किया हुआ था जब वो डिसऑनर हो जाता है तब क्या एंट्री होती है? Acceptor or debtor debit to endorsee. राइट. एक्सेप्टर और डेटर डेबिट टू एंडोर्सी. और एंडोर्सी कौन होगा? क्रेडिटर्स में से होगा. तो एंडोर्सी की जगह हम क्रेडिटर भी कह सकते हैं. सो इन टोटल डेटर्स अकाउंट डेबिट साइड वी विल राइट टू टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट 4,500
endorsed bills dishonored. Next is bills Endorsed. Endorsee debit to bills receivable. ठीक है, जब हम ये इस चैप्टर में कर रहे हैं तो हम एक्सेप्टर की जगह यूज करेंगे टर्म डेटर्स, क्योंकि हम डेटर्स के टर्म्स में न के नाम से अकाउंट बना रहे हैं। एंडोर्सी की जगह हम यूज करेंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। या जब हम एक्सेप्टर की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं तो ड्रॉर की जगह हम यूज करेंगे टर्म क्रेडिटर्स, क्योंकि उसके लिए वो क्रेडिटर है। एक बार एंट्री दोबारा बोलो बिल्स एंडोर्स्ड की। Creditor debit to bills receivable. यस, तो इसकी पोस्टिंग कौन से अकाउंट में आएगी, डेटर्स में या बिल्स रिसीवेबल में? Bills receivable on credit side. यस, वेरी गुड। बाय टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बिल्स एंडोर्स्ड 6,500। Sir, written. नेक्स्ट आइटम इज Bills collected. बिल्स कलेक्टेड, मतलब जिनका अमाउंट मिल गया, तो उसकी एंट्री क्या होती है? Bank account debit to bills receivable account. वेरी गुड। सो एंट्री इन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट विल बी, पोस्टिंग विल बी On the credit side by bank account. राइट। लिख लो, बाय बैंक अकाउंट बिल्स कलेक्टेड 24,000। Sir, written. नेक्स्ट इज Bills discounted 12,000. एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। Bank account debit discounting charges debit to bills receivable. So posting in bills receivable account, On credit side by bank account and by discounting charges. right? By bank account bills discounted 12,000 और next दिया हुआ है discounting charges, तो by discounting charges account 200। Sir, written. Next is Bills sent for collection. what entry do we pass when we send a bill for collection? Bill sent for collection account debit to bills receivable. So posting in bills receivable account, On credit side by bills sent for collection account. right? By bills sent for collection account 5,500 लिख लो। Sir, written. Now we have placed all the amounts that were given to us in the question. First of all, remember we will close bills receivable account. Whenever we are preparing debtors account as well as bills receivable account, first we should close bills receivable account. Why? क्योंकि इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है उसका इफेक्ट डेटर्स पे भी हो सकता है, जो कि इस केस में भी होगा। टोटल देखो क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है, 1,29,200, दोनों साइड टोटल लिख लो। और डेबिट में सिर्फ एक अमाउंट है 60,000। इसको अगर हम लेस करें तो व्हाट इज द बैलेंस दैट वी गेट?
69,200. Yes. Now what will be that amount? Balance brought down, carried down तो already दिया हुआ है. ठीक है. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो मैंने आपको नोट्स में बनवाया था उसमें देखो 4 जगह स्टार लगाया था. क्रेडिट साइड पे कौन सी 2 जगह था? By bank account and by balance carried down. वो दोनों तो हैं क्रेडिट साइड पे. और डेबिट साइड पे कौन सी 2 चीजों पे था? Balance brought down and total debtors account. Balance brought down is already there. That means total debtors आएगा. अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी that will be to total debtors account 69,200. मतलब these are bills which were received during the year. Is it clear? Yes. इसकी पोस्टिंग अब टोटल डेटर्स अकाउंट में भी जाएगी. विच साइड? Credit side. Credit side. By bills receivable account, bills received 69,200. Written. Now we will total and balance total debtors account. इसमें देखो कौन सी साइड ज्यादा लग रही है? क्रेडिट है ना. तो क्रेडिट साइड का टोटल करो पहले. कितना आ रहा है? 119,200. ओके. डेबिट का टोटल 12 प्लस 6 18 प्लस 12 30 35 35 एंड 39 500 लेस कर दो तो बैलेंसिंग फिगर वी गेट इज 79,700. अब इसमें ये बैलेंसिंग अमाउंट क्या निकला होगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन इज ऑलरेडी देयर, कैरिड डाउन इज ऑलरेडी देयर. क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट भी ऑलरेडी है. किन 4 चीजों पे स्टार लगाया था इसमें? क्रेडिट वाली तो एक बाय बैंक अकाउंट होता है, एक बाय बैलेंस कैरिड डाउन. वो दोनों तो दिए हुए हैं. डेबिट साइड पे कौन सी 2 चीजों पे स्टार लगाया था? Balance brought down and sales account. एंड सेल्स. इसका मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर आई ये क्या आई? Sales account. सेल्स. वेरी गुड. कौन सी सेल्स? कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स या टोटल सेल्स? So credit sales. क्रेडिट सेल्स. यस, क्योंकि डेटर्स अकाउंट तो तभी इन्वॉल्व होगा ना. कैश सेल्स में तो एंट्री होगी बैंक टू सेल या कैश टू सेल. डेटर टू सेल तो तभी होगी जब क्रेडिट सेल है. तो इसका मतलब ये जो मिसिंग इंफॉर्मेशन निकली दिस इज क्रेडिट सेल अमाउंट. क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या है? फाइंड आउट टोटल सेल्स. कैश सेल्स आर 20% ऑफ क्रेडिट सेल्स. तो कैश सेल्स कैसे निकालेंगे? 20% of 79,700. वेरी गुड. तो कैश सेल्स आर 20% ऑफ 79,700. दैट इज रुपीज 15,940. और फिर टोटल सेल्स आ जाएंगी कैश और क्रेडिट सेल्स को ऐड करके. 79,700 प्लस 15,940 इक्वल्स रुपीज 95,640. Sir, written. Is it clear? Is this question clear? Yes, sir. ठीक है. तो सिंपली जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कौन से अकाउंट्स से रिलेटेड है. वो वाले अकाउंट्स प्रिपेयर करो, उनमें इंफॉर्मेशन प्लेस करते जाओ, मिसिंग फिगर्स निकालो एंड वी विल गेट आवर आंसर. नाउ लेट अस डू अनदर इलस्ट्रेशन. ये क्वेश्चन लिख लो आप पहले.
Param Center does not maintain proper books of accounts. Following information is available from its records. Bills payable, creditors. जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है ये बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स से रिलेटेड है. तो अकाउंट्स बनेंगे दो, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट. 10 लाइन्स ईच. क्वेश्चन लिख लो और फॉर्मेट्स बना लो दोनों अकाउंट के, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. Up to where have you written? Sir, drawing the formats. Okay. Sir, written. बन गए फॉर्मेट्स भी? Yes, sir. Okay. So again, like previous question, first of all, we are given the opening and closing balances of bills payable and creditors. इन दोनों का ओपनिंग बैलेंस किस साइड होता है? Credit side. क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड पे लिखो बिल्स पेबल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 और डेबिट साइड पर सेकंड लास्ट लाइन में लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन 55,000. सिमिलरली टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,000 एंड डेबिट साइड सेकंड लास्ट लाइन टू बैलेंस कैरिड डाउन 85,000. Sir, written. Okay, what is the first particular given? Bills discharged. Bills discharged. Discharged का मतलब जिनकी पेमेंट कर दी, जो बिल्स पेबल हमने पे कर दिए. What is the entry for that in the books of acceptor? बिल्स पेबल किसके लिए होंगे? एक्सेप्टर के लिए. इसका मतलब हम एक्सेप्टर की बुक्स में अब एंट्रीज कर रहे हैं. तो एक्सेप्टर की बुक्स में पेमेंट की एंट्री क्या होती है? Bills payable account debit to bank account. वेरी गुड. तो बिल्स पेबल अकाउंट में पोस्टिंग कैसे आएगी इसकी? On debit side to bank account. राइट, लिख लो टू बैंक अकाउंट बिल्स डिस्चार्ज्ड 5,000. Sir, written. नेक्स्ट इज बिल्स डिसऑनर्ड. इसकी क्या एंट्री होती है? Bills payable debit to the drawer for the creditor. यस, और नोटिंग चार्जेस भी डेबिट होते हैं. तो पोस्टिंग बिल्स पेबल अकाउंट में कैसे आएगी? On debit side to creditors account 7,000. वेरी गुड. और क्रेडिटर्स अकाउंट में? On credit side by bills payable account. वेरी गुड.
By bills payable account 7,000. Bills dishonored. And what about noting charges? On the credit side of total creditors account. Yes, total creditors में ही आएगा वो, bills payable में नहीं आएगा. By noting charges account 300. Are written. Then next is Credit purchases 44,000. journal entry for this. Purchases account debit to the creditor. So posting in creditors account. On credit side by purchases. Very good. लिख लो. By purchases account 44,000. Are written. Next is Endorsed bills dishonored. entry for this in the books of acceptor now. Remember, acceptor की books में क्या होता है? Endorsed bills dishonored अगर कह रहे हैं तो उन bills के लिए ये acceptor होगा या drawer होगा? पहले ये सोचो. Endorse कौन करेगा? Drawer. Drawer. तो इसका मतलब अगर हम कह रहे हैं endorsed bills dishonored, मतलब वो bill of exchange जिसके लिए ये ड्रॉर था, इसे मिले थे और इसने एंडोर्स कर दिए थे आगे अपने क्रेडिटर को, और वहां से वो डिसऑनर हो गए. तो एंट्री मतलब ड्रॉर की बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचनी है. एंडोर्स्ड बिल्स डिसऑनर्ड की एंट्री बताओ. Debtor debit. No. हाँ, debtor debit to creditor. यस. तो पोस्टिंग इसकी क्रेडिटर्स के अकाउंट में कैसे आएगी? डेटर्स का अकाउंट तो इस क्वेश्चन में हम बना नहीं रहे. On credit side by debtors account. राइट. लिख लो. बाय टोटल डेटर्स अकाउंट. अमाउंट ये अमाउंट कॉलम में लिख लेना, यहां पर बाय मिस्टेक पर्टिकुलर्स में आ गया है. ठीक है. एंडोर्स्ड बिल्स डिसऑनर्ड. और इस वाले केस में हम ड्रॉ थे और पहले वाले केसेस में हम एक्सेप्टर थे. यस, एब्सोल्युटली. ओके सर. क्योंकि आप ये सोचो ना, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड. एंडोर्स्ड बिल अगर कहा जा रहा है तो एंडोर्स कौन से बिल को करेंगे? जो कहीं से मिला होगा. बिल पेबल को तो एंडोर्स नहीं कर सकता ना कोई. बिल रिसीवेबल कोई एंडोर्स कर सकता है. तो एंडोर्स्ड बिल्स डिसऑनर्ड का मतलब है वो बिल जो इसने एंडोर्स किए थे. इसने एंडोर्स किए थे मतलब इसके लिए जो बिल रिसीवेबल थे उनके लिए ये ड्रॉर था. राइट. यस सर. तो ये थोड़ा सा इंटेलिजेंस अपनी यूज करने की जरूरत होती है ऐसे क्वेश्चंस में. ओके, नेक्स्ट आइटम इज डिस्काउंट रिसीव. डिस्काउंट रिसीव्ड. क्या एंट्री होती है? क्रेडिटर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. वेरी गुड. सो पोस्टिंग On debit side of total creditors account. yes, to discount received account 500. Written. Next is Purchase return. entry for purchase return. Creditor debit to purchase return. So posting
On debit side of total creditors. Yes, to purchase returns account 2,500. Sir, written. Next is Bills endorsed. bills endorsed. कौन से बिल एंडोर्स होंगे? रिसीवेबल या Bills पेबल? receivable. यस Receivable. यस, तो उसकी एंट्री Creditor debit to bills receivable. वेरी गुड. सो पोस्टिंग On debit side of total creditors. yes, to bills receivable account 14,000 bills endorsed. Sir, written. We have placed all the amounts given. Now which account will we close first? Bills payable. Yes, जैसे डेटर्स और बिल रिसीवेबल में से हम पहले बिल्स रिसीवेबल को क्लोज करते हैं, वैसे ही क्रेडिटर्स और बिल पेबल में से हम पहले बिल्स पेबल को क्लोज करते हैं. इसमें देखो डेबिट टोटल कितना है? Sir, debit total is 67,000. 67,000 और क्रेडिट में है 50,000, तो डिफरेंस कितना हुआ? 17,000. 17,000. कौन सी मिसिंग इंफॉर्मेशन होगी? वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है ना, तो क्रेडिट साइड पे देखो कौन सी दो चीजें के आगे स्टार लगाया हुआ है हमने. एक तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, दूसरा Total creditors. बाय टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट. लिख लो बाय टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट 17,000 बिल्स एक्सेप्टेड, मतलब इतने अमाउंट के बिल्स एक्सेप्ट किए होंगे ड्यूरिंग द ईयर. Sir, written. और इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर जाएगा? Total creditors account Total- on debit side. यस, वेरी गुड. टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड टू बिल्स पेबल अकाउंट 17,000 बिल्स एक्सेप्टेड. Sir, written. नाउ वी विल क्लोज टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट. इसमें देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 72 प्लस 7 79 प्लस 44 123 आई सपोज 123 300 133 300 133 300. ठीक है. और डेबिट साइड का टोटल करके इसमें से लेस करो, डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है? $14,300. 14,300 इज द डिफरेंस. और ये क्या होगा? टू बैंक अकाउंट. ठीक है. डेबिट साइड पे दो चीजों के आगे हमने स्टार लगाया था, एक बैंक अकाउंट और एक बैलेंस कैरिड डाउन. बैलेंस कैरिड डाउन ऑलरेडी हमारे पास है, सो दिस मिसिंग इंफॉर्मेशन इज टू बैंक अकाउंट. क्या मतलब हुआ? क्रेडिटर्स टू बैंक अकाउंट. इसका क्या मतलब हुआ? किस चीज का अमाउंट है ये? So the amount which we have paid to the creditors. एग्जैक्टली द अमाउंट विच वी हैव पेड टू द क्रेडिटर्स. और क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था? Find out the amount paid to the creditors. तो निकल गया. ठीक है ना. Yes. तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स इज रुपीज 14,300. उसके बाद एक नोट लिखो. When trading and profit and loss account and balance sheet are also prepared, each amount should be placed at two places in such a way that debit and credit are
इक्वल। मतलब जब डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इनके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट भी बन रही होगी, तो क्वेश्चन में दिया हर अमाउंट दो दो जगह जाएगा ताकि डबल एंट्री कंप्लीट हो जाए, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाए। क्लियर? Yes, sir. लिख लो ये पॉइंट। रिटर्न। अब ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, और ये क्वेश्चन भी लिख लेना, ये सारे फॉर्मेट्स भी बना लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इसे अटेम्प्ट करेंगे। इसमें सब चीजें बननी है, कैश बुक भी, टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स, ठीक है। बिल रिसीवेबल, बिल पेबल की जरूरत नहीं है इसमें। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दो बैलेंस शीट बनेंगी, एक क्लोजिंग एक ओपनिंग। कैश बुक अराउंड 15 लाइन्स, ट्रेडिंग अकाउंट